على الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. اور سب سے پہلے جو سورت جو شروع ہو رہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تعریفات سے شروع ہوئی. جس طرح سورہ فاتحہ اللہ کی تعریف سے شروع ہوتی ہیں اسی طریقے سے یہ سورت بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف سے شروع ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے شروع ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طاقت سے شروع ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ وہ ذات اقدس ہے اور اللہ تعالیٰ وہ مضبوط ذات ہے اور اللہ تعالیٰ وہ ذات اقدس ہے جس نے ظلمات کو اور نور کو پیدا کیا. کس کو پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ظلمات کو یعنی اندھیروں کو اور روشنی کو پیدا کیا. اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال فرمائے ہیں وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ فرمائے یعنی ظلمات کو پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اور نور کو پیدا کرتا ہے. کیا مطلب؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر تاریکی کی بہت سی شکلیں صورتیں ہیں مگر روشنی کی صرف ایک ہی صورت ہے. وہ کیا ہے؟ سورج. روشنی کی ایک ہی صورت ہے بلب. اس کے علاوہ تاریکی کی اور بھی صورتیں ہیں. ٹھیک اسی طریقے سے اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں، اسلام کے علاوہ جتنے لوگوں کے طور طریقے ہیں، اسلام کے علاوہ جتنے لوگوں کی تہذیب ہے، کلچر ہے، تمدن ہے، ثقافت ہے، برادریاں ہیں، خاندان ہیں، ان تمام کی باتیں ہیں یہ تمام کی تمام ظلمات میں شمار ہوتی ہیں. اس لیے اللہ نے یہاں پہ جمع کا لفظ اسلام استعمال فرمائے ہیں کہ تاریکیاں بہت ہیں. یہ مذہب کی تاریکی الگ، وہ مذہب کی تاریکی الگ، وہ مذہب کا کلچر الگ، وہ مذہب کی تعلیمات الگ. یہ جتنے مذاہب دنیا کے اندر پائے جا رہے ہیں یہ تمام کے تمام انسان کو ظلمات میں اور انسان کو جہنم کی طرف دھکیلنے والے ہیں. صرف ایک روشنی ہے، وہ کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. صرف ایک روشنی ہے اور وہ ہے اسلام. وہ نور صرف اسلام ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نور کو واحد ذکر فرمائے یعنی صرف نور فرمایا، انوار نہیں فرمایا. نور کی جمع کیا آئیں گی؟ انوار. تو اللہ نے یہاں پہ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالْأَنْوَارِ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات اقدس ہے جو ظلمات کو لاتا ہے اور نور انوار کو لاتا ہے، نوروں کو لاتا ہے. بلکہ یہ نہیں فرمایا اللہ وہ ذات اقدس ہے جس نے ظلمات کو بنائے اور نور کو بنائے. یعنی دنیا کے اندر مختلف مذاہب ہے، دنیا کے اندر مختلف تہذیبیں ہیں، اس کے باوجود صرف روشنی کا ایک راستہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ اسلام ہے. مگر اس کو سمجھے تو روشنی ہے، جس نے اس کو سمجھا نہیں تو اس کو کیا روشنی ملے گی؟ جس کے پاس خود سونا ہو اور اس کے پاس سونے کی قدر نہ ہو تو اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا دنیا کے اندر؟ تو یہ ہے اسلام کو جو سمجھتا ہے وہ اس کی قدر کرتا ہے. جو اسلام کو جانتا نہیں اور اسلام کو صرف استعمال کرتا ہے تو اسلام بھی ایسے بندوں کی قدر نہیں کرتا، پھینک کے دیتا ہے. اور اللہ پاک کے نزدیک جو اسلام کی قدر کرے گا، جو قرآن کی قدر کرے گا، جو مدارس مساجد کی قدر کرے گا، ایسے بندوں کی اللہ کے پاس اہمیت ہے. ورنہ اللہ کو کیا اہمیت ہے ایسے بندوں کی؟ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ تو سب بندے برابر ہے. فرعون بھی برابر کا بندہ ہے اور عبداللہ عبد الرحمن بھی برابر کا بندہ ہے. کوئی کمپرومائز نہیں ہے اس کے اندر. وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، یہ بھی اللہ کا بندہ ہے. ایسا نہیں کہ اللہ کی اسے دشمنی تھی اور اسے اللہ کی دوستی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہاں البتہ جو اپنی توجہ دکھائیں گا، جو اپنی فکر دکھائیں گا، اپنی قرآن دکھائیں گا، ایسے بندوں کو اللہ محبوب رکھتے ہیں، ایسے بندوں کو اللہ پیارا رکھتے ہیں. اس لیے تمام انبیاء میں سب سے بڑا مرتبہ ہمارے نبی کا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے واسطے ہمارے نبی نے سب سے زیادہ قربانی دی. اس لیے اللہ نے سب سے بڑا مقام عطا فرمایا ہے. فرمایا پیارے محمد جتنی بظاہر ذلت کی شکلیں صورتیں مہیا تھی، جتنی دنیا کے اندر ذلیل کرنے کی سازشیں تجھے کی گئی ہیں اتنا کسی کو نہیں گئی. اس لیے محمد تو نے میرے واسطے تمام ذلتی کو اپنے اوپر مول لے لیا، اپنے اوپر اوڑھ لیا. اس لیے میں تجھے عزت کی اور ذلت، میں تجھ کو ہے تو عروج کی اور میں تجھے عزت کی بلندی عطا کروں گا. کیا عطا کروں گا؟ معراج اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا. یہ بات ہے. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انسان کس بات کا تجھے گھمنڈ ہے اور کس بات کا تجھے تکبر ہے، کس بات پہ تو بھروسہ کر کے بیٹھا ہے. حالانکہ تیری حقیقت اور تیری حیثیت اور تیرا مقام و مرتبہ تو مٹی ہے. مٹی کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ؟ تو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. جس مٹی سے تو چڑ کرتا ہے،
तो अपने घर के अंदर मट्टी को बर्दाश्त नहीं करता, अपनी दुकान में मट्टी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपने बदन के ऊपर मट्टी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपने कपड़े के ऊपर बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह अपनी हकीकत को गिना रहा है, बंदो अपनी हकीकत को समझो, अल्लाह वो ज़ात अक़दस है जिसने तुमको मट्टी से पैदा किया, और वो भी कौन सी मट्टी, जिसके अंदर से बू महसूस हो रही थी, खनखनाती हुई मट्टी, जिसके अंदर भूनने के बाद उसके अंदर हल्की सी बू महसूस हो गई। ऐसी मट्टी से अल्लाह ताला ने मुझको और आपको पैदा किया है। फिर वो फरमा रहे, फिर अल्लाह ताला फरमा रहे कि तुमको पैदा करने के बाद मैंने तुमको एक वक्त अता फरमाया है। वो कौन सा वक्त है कि मैंने तुम्हारे लिए एक मुद्दत को तय कर दिया है कि तुम्हारे लिए फला फला मुद्दत तक तुमको दुनिया के अंदर रहना है। फिर आगे अल्लाह ताला फरमा रहे कि एक और वक्त है तुम्हारे लिए। कौन सा है वक्त अल्लाह ताला के पास, कि अल्लाह ताला फरमा रहे कि तुम्हारे दुनिया में एक रहने का वक्त है, फिर तुम्हारे दुनिया से उठाए जाने का एक वक्त है। एक दुनिया में रहने का वक्त है और एक दुनिया से उठाए जाने का वक्त है, और तुम इसके अंदर शक कर रहे हो। यानी कुफार मक्का से ये कहा जा रहा और लिबरल लोगों से ये कहा जा रहा, और जो लोग बहुत ज्यादा साइंस की दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा रहते हैं और ये कहते हैं कि ये जहान एक मर्तबा मिला है, इसलिए क्या करना है, इसमें क्या करना है, ऐश करना है। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ऐश वो करेगा जिसके सामने आखिरत का तसव्वुर नहीं, ऐश वो करेगा जिसके सामने अल्लाह रसूल की बातें नहीं है, ऐश वो करेगा जिसके सामने जहन्नम का तस्करा नहीं है, ऐश वो करेगा जिसके सामने कब्र की जिंदगी नहीं है, ऐश वो करेगा जिसके सामने सांप और बिच्छू का तस्करा नहीं है। और ईमान वाले जिनके सामने कब्र का, आखिरत का, अल्लाह का और नबी का तसव्वुर होता है, जहन्नम का तसव्वुर होता है, वो लोग ऐश नहीं करते, बल्कि जो नबी मोहतरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी है उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते हुए फरमा रहे। फिर बाद में अल्लाह ताला फरमा रहे कि अल्लाह ज़ात अक़दस है जो छुपी हुई बातों को और खुली बातों को जानता है। हालांकि अल्लाह के नजदीक छुपा हुआ और खुला हुआ कोई बात वाज़े, कोई बात छुपी हुई नहीं है। अल्लाह के नजदीक रात और दिन क्या है, बराबर है। अल्लाह के नजदीक रात का तसव्वुर नहीं है। ये तो मेरे और आपको समझाने के लिए अल्लाह ताला ने लफ्ज को इस्तेमाल फरमाए हैं कि अल्लाह वो ज़ात अक़दस है जो जाहिर को भी जानता है और बातिन को भी जानता है। अल्लाह वो ज़ात अक़दस है जो ज़ुलुमात को भी जानता है, नूर को भी जानता है। अल्लाह वो ज़ात अक़दस है जो तुम्हारी दिलों की बातों को भी जानता है और तुम्हारी जुबान की बातों को भी जानता है, और जो तुम काम से करतूत करते हो, हाथ से, पैर से, इशारे से, आंख से, इन तमाम करतूत को जो करते हो, अल्लाह वो ज़ात अक़दस है जो तुम्हारे तमाम हरकत को जानता है। वो अल्लाह ताला इसके अंदर बयान फरमा रहे। फिर बाद में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, इन लोगों के पास जब भी हमारी निशानी आती, जब भी इनके सामने हमारे कुरान मुक़द्दस को पेश किया जाता, जब भी इनको हमारे कुरान मुक़द्दस की तरफ खींचा जाता, और जब भी हमारे कुरान पाक की इनके सामने सदा लगाई जाती, जब भी इनके सामने हमारे कुरान पाक का स्टेज सजाया जाता, जब भी इनके सामने इनकी मसाजिद में कुरान मुक़द्दस के समझने का एहतिमाम किया जाता, ये लोग इसकी तरफ तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारा है कुरान, ये मैं अपनी तरफ से तशरीह पेश नहीं कर रहा हूं। अल्लाह फरमा रहे कि जब भी हम उनके सामने आयत को पेश करते हैं, ये लोग तो मुंह फेर कर चले जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये लोग मुंह फेर कर चले जाते हैं। इसलिए मेरे अजीजों दोस्तों, ये कोई हल्की बात नहीं है। जो लोग अब इसके ऊपर तवज्जो नहीं देते हैं, वो लोग अपने ऊपर जहन्नम को बोल ले रहे हैं। दुनिया की हर किताब समझने के लिए वक्त है हमारे पास, और अल्लाह की किताब के लिए वक्त नहीं है। ये बहुत बड़ा अलमिया है। काश कि अगर इस अलमी को कोई समझेगा तो अपनी आखिरत बन जाएंगे उसकी। ये तो हम कह रहे हैं आपके लिए अल्लाह की नेमत है, नेमत, खुदा की कसम, अगर ये नेमत छूट जाए ना, पूरी जिंदगी में रहेंगे तो ये नेमत नहीं मिलेंगी आपको। ये तो हमारा शौक है कि हम आपके सामने कुरान मुक़द्दस का, और वो मोहताज बन के दे रहे हैं, मोहताज बन के, और बुला बुला कर घुट्टी में पिला के दे रहे हैं। ठंडी के बाद भी ऐसा दर्स कुरान आपको नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह। ये अल्लाह की नेमतें हैं, ये कोई ऐसी मामूली चीज नहीं है। ये अल्लाह की किताब है, वो अल्लाह देख रहा है, वो ज़ात अक़दस देख रहे हैं इन तमाम चीजों को कि मेरे किताब के साथ ये खिलवाड़। अच्छा दुनिया में ऐश करके और फिर बताऊंगा मैं तुम्हें, क्योंकि दुनिया में कैसा है अल्लाह के, हमने इससे पहले बताया शब बारात में, अल्लाह वो ज़ात अक़दस है जो मुतासिर नहीं होता। जहां अल्लाह तेरे कुरान को नहीं सुनेंगे तो अल्लाह को ऐसा गुस्सा नहीं आएगा, धड़म बोल के मार देगा, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला खाली बस, अल्लाह की ज़ात मौसिर नहीं होती। अगर तुम नौज़ बिल्लाह करोड़ों बार जो लोग अल्लाह की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, नबी की शान में, वो दुनिया के तनतनाते फिर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा उनको। क्यों? अल्लाह ने बस एक वक्त बना दिया, एक उसूल बना दिया, ज़ाब्ता बना दिया, जिसको जो चाहे करना है कर दो, और वहां पर देखेंगे तुम्हारा हिसाब। अल्लाह उसको कहते हैं। अगर अल्लाह भी मुतासिर होंगे तो फिर वो अल्लाह नहीं। ये बात इससे पहले बताया था हमने शब बारात के अंदर। अल्लाह ताला कभी मौसिर नहीं होते। अल्लाह ताला कभी हमारे जज्बात को देखकर या हमारी बातों को देखकर या हमारे हरकत और सकनात को देखकर अल्लाह ताला फौरी इंतकाम नहीं लेते। उसकी ज़ात अक़दस करीमी है, वो अपने बंदों पर बड़ा प्यार करने वाला है, रहम करने वाला है। इतनी ज्यादा बेतवज्जो होने के बाद,
गफलत होने के बावजूद भी कुरान मुकद्दस को अल्लाह ताला समझाने का, समझने का और ये नूरानी माहौल अता कर रहा है। ये उसकी मोहब्बतें हैं। फिर फरमाया अल्लाह ताला, जो लोग हमारी बातों का, हमारे कलाम का, हमारी हदीसों का इस्तेज़ा करते हैं, अन करीब वो लोग जान लेंगे। जो लोग हमारी बातों का इस्तेज़ा कर रहे हैं, हमारे कुरान का मजाक उड़ा रहे हैं, अल्लाह फरमा रहे कि उनको बतला दूंगा मैं, जो लोग हमारे कुरान पाक का इस्तेज़ा करते हैं। इसलिए कुफार मक्का के बारे में कहा जा रहा कि वो लोग इस्तेज़ा उड़ाते थे। आज भी, इससे पहले भी हमने बताए थे, एक आदमी को बताए थे कि देखो, आपको कुरान मुकद्दस की तफसीर में बैठना है, अदब से बैठो, वरना आप उठकर चले जाओ। हमने इससे पहले ही बोले, हमने जहां पर तफसीर करते थे वो एक दूसरे को देखकर हंस रहे थे, वो एक दूसरे को देखकर इशारे कर रहे थे। मैंने कहा कि ऐसा मत करो, ये अल्लाह का किताब है, ये अल्लाह की किताब है। अरे फजाइल आमाल पढ़ते हैं, फजाइल मुंतखब पढ़ते हैं, तो किसी बंदे की मजाल नहीं होती कि हंस कर मुस्कुरा ले। ये तो कुरान पाक है, इसमें क्या मुस्कुराना है? तो इस पे इबरत है, इसके अंदर नसीहत है, ये जिंदगी का सामान है, इसलिए इसकी तरफ तवज्जो देना जरूरी है। वही अल्लाह ताला फरमा रहे कि तुम जो भी हरकत करोगे मैं सब मुतनब्बे करूंगा कि तुम फला काम कर रहे थे, फला काम कर रहे थे। वही फरमा रहे इसके अंदर अल्लाह ताला, क्यों अल्लाह ताला फरमा रहे कुफार मक्का, तुमसे पहले बड़े बड़े वडेरे आकर चले गए, तुमसे पहले बड़े बड़े तुर्रम खां आके चले गए, ऐसे लोग दुनिया के अंदर आके चले ऐसे लोग दुनिया के अंदर आके चले गए जो अपने हाथों की कारागिरी से, जो अपने फनकारी से, जो अपने ताकत के बलबूते पर पहाड़ों के अंदर है तो घर बनाते थे, जो है तो जिनको अल्लाह ताला ने हजार हजार 500 साल की उम्र दिया था, ऐसी बड़ी बड़ी उनको ताकत दिया था अल्लाह ताला ने, कि वो ताकत अल्लाह ने तुमको नहीं दिया। क्या फरमा रहे अल्लाह ताला, इस उम्मत से वो ताकत हमने उनको अता फरमाई थी, कि वो ताकत और वो सलाहियतें और फनकारी अता फरमाई थी जो तुमको फनकारी अता नहीं की हमने। इसके बावजूद हमने उनको पकड़ा, हमारी आजमाइश ने, हमारी सजा ने, हमारी गिरफ्त ने और हमारे अजाब ने उनको पकड़ा, तो हमारे अजाब से छुड़ाने वाला कोई नहीं आया। फिर हमारे अजाब से छुड़ाने वाला उनको कोई नहीं आया। इसलिए अजीजों, ये मौका है हमारे पास जिंदगी को बनाने का और जिंदगी को सुधारने का। और कैसी नियमत अल्लाह ने उनको दिया था? अल्लाह ताला ने बारिश की नियमतें दिया था, अल्लाह ताला ने बागात की नियमतें दिया था। इन तमाम नियमतों में होने के बावजूद अल्लाह ताला ने उनको उनके गुनाहों की वजह से, उनके करतूत की वजह से, अल्लाह की नाफरमानी की वजह से, अपने नबी की मोहब्बत को दिल के अंदर नहीं बिठाने की वजह से, अल्लाह ताला के हुक्मों की तरफ तवज्जो नहीं देने की वजह से और पैगंबर का इस्तेहजा उड़ाने की वजह से अल्लाह ताला ने ऐसे कौम को बर्बाद किया। और एक नहीं, ऐसी हजारों जमात को अल्लाह ताला ने बर्बाद किया है। फिर बाद में कुफार मक्का हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में आए और फरमाया कि हम ईमान लेकर आएंगे। कब ईमान लेकर आएंगे? जब आसमान से एक फरिश्ता आएगा और ये कहेगा कि ये प्यारे मोहम्मद है, ये किताब है, इस किताब को हाथ लगाओ, हाथ लगाने के बाद यकीन करेंगे, फिर उसके बाद हम तुम्हारी बात को मानेंगे। यानी क्या है मतलब? आज भी हम बज़बान हाल यही कह रहे हैं कि इमाम महदी आओ, फला आओ, ये आओ, फिर हम जाकर सुधरेंगे। ऐसा नहीं है, ये कुरान ही सबसे बड़ा है, इमाम महदी से बड़ा कुरान पाक है जो हमारी हिदायत के लिए सामान है। मगर हमारे पास क्या है? हमारे पास ये जहन में बैठा है कि फला आएगा तो हम हिदायत पर रास्ते पर आ जाएंगे, फला आएगा तो हम हिदायत पर आ जाएंगे, फला बड़ा आलिम आएगा समझाएंगा तो हिदायत पर आ जाएंगे, फला आएगा बड़े बड़े इज्तिमात होंगे तो हम हिदायत के रास्ते पर। नहीं मेरे भाइयों, जो वक्त मिल रहा है अभी गनीमत है। ये जमाना, ये दौर इन्हितात का है, इसके बाद कोई उलमा नहीं मिलेंगे। अभी ये फकीर आपको मिल रहा है, अभी हम लोग मिल रहे हैं, इसके बाद का जो दौर आएगा, हमारे मरने के बाद अपनी औलाद से पूछना कि कौन से उलमा आए थे। फिर इसके बाद ये दौर खत्म है, ये आखिरी दौर गुजर रहा है। जो इन्नी मिन्नी चिन्नी मिल रहे हैं, जैसे मिल रहे हैं, नकटे चपटे अंधे जैसे मिल रहे हैं, ये अल्लाह की नेमत है इस जमाने के एतबार से। वरना बताओ हमारे घर में कौन सा कुरान का मिजाज है? आज हम कुरान को नहीं समझेंगे तो आप खुद ठंडे दिल से बताओ, 11 महीने हमने कुरान को हाथ लगाया, कुरान पाक को समझा, कुरान पाक के लिए वक्त निकाला, कारोबार के लिए वक्त है, बीवी के लिए वक्त है, डॉक्टरों के लिए वक्त है, इंजीनियरों के लिए वक्त है, और वकला के लिए वक्त है, अदालतों के लिए वक्त है, और कुरान के लिए वक्त नहीं है। आज मैं और आप वक्त नहीं दे रहे हैं। हालांकि अल्लाह का शुक्र है कि मैं और आप अल्लाह का दीन पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तरावी कुछ ना कुछ हद दर्जे में मैं और आप पढ़ रहे हैं। हमारी नस्लों को क्या ठिकाना होगा? कुछ भी नहीं होगा, अल्लाह माफ करे उनका। तो क्योंकि हमारी बेतवज्जुही जो हमको देखेंगे, हमारे अब्बा नहीं पढ़ते थे, हमारे अब्बा खाली बितर पढ़ के आते थे, सुन्नतें पढ़कर आते थे, तो वो नफिल क्यों पढ़ेंगे? ये दौर नीचे की तरफ जा रहा है। इसलिए जो दौर मिल रहा है मुझको आपको, जैसा मौका मिल रहा है, इसकी तरफ मुझको आपको तवज्जो देने की जरूरत है। वही फरमा रहे कुफार मक्का, जब तक ईमान नहीं लाएंगे, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि प्यारे मोहम्मद, अगर ये कुफार मक्का ये भी दावा करते हैं कि अगर हमारे ऊपर फरिश्ता नाजिल हो, अगर कोई मलक नाजिल हो
اور اگر کوئی فرشتہ نازل ہوگا تو ہم آپ کی بات کو مانیں گے, آپ کی بات کو, ورنہ ہم نہیں مانیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دیکھو اے پیارے محمد, یہ لوگ آپ پر شک کر رہے ہیں, یہ لوگ آپ پر ایمان نہیں لا رہے ہیں کہ دیکھو اگر ہم فرشتہ بھی نازل کریں گے نا تو اس کو انسان کی شکل دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر فرشتہ نازل کریں گے تو یہ لوگ کہیں گے فرشتوں کو کیا ہے, کھانا بھی نہیں, پینا بھی نہیں, کپڑا بھی نہیں, بیوی نہیں, بچے نہیں, ہم کو تو کتنے جھمیلے ہیں, اس لیے ہم نماز کو نہیں آئیں گے, ہم دین کی طرف نہیں آئیں گے. جب فرشتہ بھی نازل کریں گے تو اعتراض کریں گے, اور جب پیارے محمد ان کے زمانے میں نازل ہوئے, پیارے محمد کی ان کے پاس تعلیمات آئی ہیں, تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں یہ فرشتہ اللہ تعالیٰ نازل کرتا تو ہم ایمان لے کر آتے تھے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ بس دین کی باتوں پر عمل نہیں کرنا ہے, بس صرف اعتراضات کرنا ہے اور ہے تو عذر پیش کرنا ہے اور خواہشات کو پیش کرنا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے ہمارا دور بھی ایسی چھے. ہمارا دور کیا ہے, ارے مول صاحب ایسی چھے, وہ مول صاحب برابر نماز نہیں پڑھاتے, وہ فلاں مول صاحب ہے تو برابر بیان نہیں کرتے, کیونکہ ہمارے پاس صرف نقص نکالنا ہے. ارے بھئی یہ بتاؤ کہ فلاں مول صاحب اگر برابر قرات نہیں کر رہا ہے یا نماز نہیں پڑھا رہا ہے یا کچھ نہیں کر رہا ہے, کم سے کم تمہارے سے زیادہ جانتا تو ہے نا. کم سے کم ہر مسجد کا یہی حال ہو گیا, ہر مساجد کے اندر, کہ وہ فلاں ایسے ہے, میں ان کے پیچھے نہیں پڑھتا, میں ان کے ساتھ نہیں پڑھتا, ان کے بیانات میں نہیں سنتا, میں ان کی تفسیر نہیں سنتا, میں ان کے درس میں نہیں جاتا, نہ یہاں پر جاتا ہے نہ وہاں پر جاتا ہے, کہیں پر نہیں آتا, بلکہ اس کو مقصد بنا کر دین سے دور ہوتا ہے, علماء سے دور ہوتا ہے, مسجد سے دور ہوتا ہے, مدارس سے دور ہوتا ہے, جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک, اللہ معاف کرے, بغیر ایمان کی دنیا سے چلے جاتا ہے. کیوں؟ جب مدارس کا مزاج نہیں, مساجد کا مزاج نہیں, علماء کا مزاج نہیں, تو یہ بندہ دین پر باقی رہے گا. دین کو سمجھانے والا ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, ماشاءاللہ آپ دواخانے میں گئے تو ڈاکٹر کہہ رہا ہے پڑھو انما الاعمال بالنیات. آپ دواخانے کے اندر گئے, وکیل کے وکالت میں عدالت میں گئے تو وہی کہہ رہا ہے الطہور نصف الایمان, الطہور شطر الایمان, وہ یہ کہہ رہا ہے اشربوا الماء اعینکم, سیدھے ہاتھ سے پانی پیا کرو, پانی دیکھ کر پیا کرو. وہاں پر ملیں گے دینی تعلیم؟ یا بازار میں گرے کہا ماشاءاللہ ہم کو ہے تو فلاں دے دو, 1 کلو یہ دے دو, یہ دے دو, فلاں سامان دے دو, اور یہ کہہ رہا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر یہ فرما رہے ہیں, اللہ تعالیٰ یہ قرآن فرما رہے ہیں. یہ تمام باتیں نہیں ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے پیارے محمد, اگر ہم ان کے سامنے فرشتہ بھی نازل کریں گے تب بھی عذر کو پیش کریں گے, اپنی ہے تو آزار کو پیش کریں گے اور اعراض کریں گے. اور اگر ہم نے آپ کو نازل کیا جس طرح آپ کے نازل ہونے پر یہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں, ٹھیک اسی طریقے سے فرشتے کے نازل ہونے پر بھی یہ لوگ اعتراض کریں گے. وہی فرما رہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ. پھر وہاں فرما رہے کہ جو لوگ ہمارے قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں اور جو لوگ ہماری مساجد کا مذاق اڑا رہے ہیں, ہمارے علماء کا مذاق اڑا رہے ہیں, ہمارے مدارس کا مذاق اڑا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم, اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کو ان کے مذاق کا مزہ چکھائیں گے. ہم کیا چکھائیں گے؟ ان کو ان کے مذاق کا ان قریب مزہ چکھائیں گے, اور یہ بتائیں گے کہ دیکھو ہمارے علماء کے بارے میں بک کرتے تھے, ہمارے مساجد کے بارے میں بے حرمتی کرتے تھے, اور ہمارے قرآن کے بارے میں ایسا کرتے تھے, چکو اس کا مزہ. وہی فرما رہے اللہ تعالیٰ, جس باتوں کو تمہیں تو یہ کریں گے, اعراض کریں گے اور اس کو ہلکے میں لیں گے اور اس کی طرف توجہ نہیں دیں گے, اللہ بتائیں گے کہ اس کی عظمت یہ تھی. یہ فرما رہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر. پھر وہاں فرما رہے کہ اے لوگو, اگر تمہیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, سمجھانے کے بعد بھی اگر بات سمجھ میں نہیں آ رہی, نہ ممبر سے سمجھ میں آ رہی ہے, نہ تراویح سے سمجھ میں آ رہی ہے, نہ قرآن پاک کی تفسیر سے سمجھ میں آ رہی ہے, اور نہ ہی علماء کی بیانات سے سمجھ میں آ رہی ہے, اگر آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, یا آپ کو وہ عالم صاحب پسند نہیں آ رہی, مسجد پسند نہیں آ رہی, ماحول پسند نہیں آ رہا, تو ایک کام فرما رہے اللہ تعالیٰ, پوری دنیا گھومو. کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ؟ جتنے قلعے ہیں وہاں پر جا کے دیکھو, جتنی گھومنے کی چیزیں وہاں پر جا کے دیکھو, بڑے بڑے محلات کو دیکھو, بڑی بڑی کھنڈرات کو دیکھو, بڑی بڑی عمارات کو دیکھو, اور بڑے بڑے شہروں کو جا کر دیکھو جن لوگوں نے شہر کو آباد کیا تھا اور یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہمیشہ ہمیشہ ہم لوگ یہاں پر رہیں گے. آج وہ کھنڈرات تو موجود ہے مگر ان کے مالکان موجود نہیں ہے. وہی فرما رہے اللہ تعالیٰ, قل سیروا فی الارض, پوری دنیا میں گھومو, جاؤ زمین میں چکر کاٹو. جن لوگوں نے اللہ رسول کو چھوڑ کر زندگی گزارے, جن لوگوں نے اللہ رسول کی نافرمانی کی, جن لوگوں نے قرآن کی طرف توجہ نہیں دیا, ان کے گھروں کو جا کر دیکھو, ان کے لوگوں کی زندگی کو جا کر دیکھو. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین, کیسے میں نے ان کا حشر بنا دیا اور کیسے میں نے ان کی زندگی کو برباد کر دیا, کیسے میں نے جتنے میرے لوگوں نے میرے کو چھٹلایا, میرے گھروں کو چھٹلایا, میرے قرآن کو چھٹلایا اور میرے نبی کو چھٹلایا. اللہ فرما رہے جا کے دیکھو, عبرت کا سامان بنا ہوا ہے, ان کے تمام چیزیں موجود ہیں اور ان کا وجود موجود نہیں ہے. ان کے تلواریں موجود ہے, ان کے کپڑے موجود ہے, اور ان کے ہے تو زیورات موجود ہے, ان کے پلنگ موجود ہے, تمام کے تمام چیزیں ان کے میوزیم کے اندر رکھی ہوئی ہے, مگر ان کا وجود
نہیں है। ये है इबरत का सामान। जिन लोगों के पास पूरी दुनिया की हुकूमत थी वो लोग भी दुनिया से गए हैं तो खाली हाथ गए हैं। जिन लोगों के पास पूरी दुनिया की हुकूमत थी मगर अल्लाह रसूल का हुक्म नहीं था, अल्लाह रसूल की मोहब्बत नहीं थी, अल्लाह ने ऐसे लोगों के महल्लात को भी और ऐसे लोगों के सामान को भी मेरे और आपके लिए इबरत के बनाया है। अगर मैं और आप इबरत नहीं लेंगे तो ये मेरे और आपका कसूर है, इसमें कुरान का और अल्लाह का कोई कसूर नहीं है। फिर फरमा रहे अल्लाह ताला कि देखो ये दुनिया जो है ना तुम्हारी नहीं है बल्कि किसकी है? अल्लाह की। मुल्लिल्लाह कतब अला नफ्सी रहमा, मगर ये है कि अल्लाह ताला अपने बंदों पर बड़ा रहम करने वाला है। कतब अला नफ्सी रहमा, अल्लाह ताला ने अपनी रहमत को, अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत को, अल्लाह ने अपने प्यार को, अल्लाह ने अपने इश्क को, अल्लाह ने अपनी चाहत को और अल्लाह ने अपने बंदों से प्यार को अपने गुस्से से ज्यादा बढ़ा दिया है। क्या कर दिया है अल्लाह ताला ने? जिसकी मोहब्बत की अलामत ये है कि अल्लाह के नाम पर लोग तो धोखा देते हैं, अल्लाह के नाम पर है तो लोग ड्रामा करते हैं, अल्लाह के नाम का मजाक उड़ाते हैं, इसके बावजूद अल्लाह ताला उनको माफ करता है, इसके बावजूद अल्लाह ताला उनकी तरफ मुतवज्जे होता है, इसके बावजूद अल्लाह ताला उनको तमाम की तमाम नियमतें दे रहा है। आज मेरे और आपका पूरी दुनिया का अलमिया ये है कि मैं और आप अल्लाह के नाम पर 1 घंटा 2 घंटा देने के लिए तैयार नहीं है, इसके बावजूद अल्लाह की नियमतें मेरे और आपके लिए वैसे ही हो रही है जैसा कि दीगर सहाबा इकराम के लिए नियमतें होती थी। सहाबा इकराम के जमाने में भी ये नियमतें नहीं थी, इसके बावजूद अल्लाह ताला उससे करोड़ हमको नियमतें दे रहा है, मगर मैं और आप दीन की तरफ अभी भी मुतवज्जे होने के लिए तैयार नहीं है। ये बहुत बड़ा खसारा है। हम ये समझते हैं कि खसारा नहीं है, यकीनन प्यारे मोहम्मद करीम फरमाते हैं जिस बंदे ने असर की नमाज को कज़ा किया, क्या है? जिस आदमी की असर की नमाज छूट गई, गोया के क्या है? गोया के उसके पूरे घर बाल को, गोया के उसके पूरे घर को, माल को आग लगा दी गई। पढ़े कि नहीं पढ़े हदीस? ये है हदीस में गोया कि उसके पूरे घर को बर्बाद कर दिया गया और उसके पूरे घर का नुकसान कर दिया गया। मगर मसला ये है जिसको अल्लाह की बात पे यकीन होगा तो उसके लिए तमाम चीजें हैं। क्या असर की नमाज की क्या अहमियत है? ये है मेरे भाइयों, दीन की तरफ तवज्जो देना बहुत जरूरी है, हमको कुरान की तरफ समझना। इसलिए हम आपको इसकी तरफ तवज्जो दे रहे हैं कि कुरान है, ये हमारी जिंदगी को बदलने के लिए काफी है। ये हमारी जिंदगी बदलेगा, ये हमारी सुस्ती को बदलेगा, ये हमारी लापरवाही को बदलेगा, ये हमारी गफलत को बदलेगा, ये हमारी दुनिया से मोहब्बत को बदलेगा, ये अल्लाह रसूल की दिल के अंदर मोहब्बत को बिठाएगा, अल्लाह की मोहब्बत को बिठाएगा, अल्लाह के नबी की मोहब्बत को बिठाएगा, आखिरत का ध्यान बिठाएगा, आखिरत का शौक बिठाएगा, जन्नत की तरफ लेकर जाएगा। मैं और आप जिस रविश पर चल रहे हैं, यकीन जानिए ये जहन्नम वाला रास्ता है अगर ये मिजाज नहीं बदला तो। इसलिए कुरान पाक हमको तवज्जो देता है। अल्लाह ताला फरमाया कि मेरे गुस्से से ज्यादा मेरी रहमत है, मैं अपने बंदों से बड़ा प्यार करने वाला हूं। अल्लज़ीना खसिरू, इसके बावजूद लोग जो अगर तवज्जो नहीं देंगे उनका जिक्र फरमाया, अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम, और वो लोग जिन लोगों ने अपनी जानों का घाटा किया, जिन लोगों ने खसीरो घाटा किया, नुकसान किया, और जिन लोगों ने हमारी बातों की तरफ तवज्जो नहीं दिया, फहुम ला युमिनून, इतनी समझाने के बावजूद भी, इतनी बात आने के बाद भी अगर वो लोग ईमान नहीं लाएंगे और राह रास्ते पर नहीं आएंगे, इस्लाम की तरफ मुतवज्जो नहीं होंगे, कुरान की तरफ ध्यान नहीं देंगे, तो वही लोग घाटा उठाने वाले हैं। फिर फरमा रहे अल्लाह ताला, अल्लाह वो ज़ात अक़दस है, वलहु मा सकना फिल लैलि वन नहार, जितनी दुनिया के अंदर चीजें ठहरती हैं, दिन के अंदर हो चाहे रात के अंदर हो, चाहे दिन के उजाले में हो रात के अंदर अंधेरे में हो, जितनी भी चीजें हरकत में आती हो या सुकून में आती हो, इन तमाम का खालिक और मालिक कौन है? अल्लाह है। वहुव अस्समीउल अलीम, और अल्लाह वो ज़ात अक़दस है जो बड़ा सुनने वाला है और बड़ा जानने वाला है। फिर बाद में एक शान नुज़ूल है इसका, कुफार मक्का हमारे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सामने आए और आज हम हमारे जहन को साफ करें, जैसे हमारे दौर के अंदर भी ये बात होती है। और कुफार मक्का देखिए, कुफार मक्का प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में आए और फरमाने लगे, ए प्यारे मोहम्मद, आपके आने की वजह से, नऊज़ बिल्लाह, आपके आने की वजह से, आपके तशरीफ लाने की वजह से, आपके हमारे महल्ले में होने की वजह से, हमारे माशरे में होने की वजह से, हमारे खानदान में होने की वजह से, हमारी बिरादरी में होने की वजह से, बाप बेटे का नहीं रहा, बेटा बाप का नहीं रहा, बेटी माँ की नहीं रही, माँ बेटी की नहीं रही, माँ और बेटी के अंदर दुश्मनी हो गई, बाप और बेटे के अंदर दुश्मनी हो गई, घर के अंदर रिश्तेदारियां, घर के अंदर जो दुश्मनी हो गई, खानदान में दुश्मनियां हो गई, माशरे में दुश्मनियां हो गई, और हमारी बिरादरी में दुश्मनियां हो गई, और हमारे पूरे मुल्क में और हमारे पूरे शहर की आपके आने की वजह से क्या हो गई? दुश्मनियां हो गई, हमारे आपके आने की वजह से। ठीक इसी तरीके से आज के हमारे लोग ये कहते हैं, हमारा माशरा ये कहता है कि फला अगर ये करेगा, अगर फला दीन की तरफ जाएगा, या फला इस्लाम की तरफ जाएगा, या फला मदरसे में जाएगा, या फला दीनी तंजीमों में जाएगा, तो जिसकी वजह से दीन इस्लाम पर अमल करता है, तो ये कहता है कि तेरे वजह से पूरी नहुसत आ रही है,
तेरे जाने की वजह से तमाम चीजें हो रहे हैं, तेरी वजह से घर के अंदर फसाद हो रहा है, तेरे आने की वजह से तू क्या लगा दिया, पर्दा पर्दा पर्दा, तेरे वजह से हमारे भाई भाई के अंदर दुश्मनी हो गई है, तेरे वजह से शक करने की वजह से ये हो गई। ये तमाम चीजें जिस तरह कुफारे मक्का ये कहते थे, उसलिए कहते प्यारे मोहम्मद ऐसा करते हैं कि आप है तो एक साल हमारे खुदाओं की इबादत करे, इसलिए आप भी हमारे खुदाओं की इबादत करें, हम भी आपके खुदाओं की इबादत करते हैं, जिसकी वजह से मुल्क में शांति होंगी, जिसकी वजह से हमारे है तो घरों के अंदर इत्तेहाद होगा। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए प्यारे मोहम्मद तुम ऐसा नहीं कर सकते। हर प्यारे मोहम्मद फरमाया कुल अगैर अल्लाह अत्तखिज़ु वलिय्यन फातिरिस समावाति वल अर्द व हुवा युत'iमु व ला युत'म, मैं अल्लाह को छोड़कर किसी की इबादत नहीं कर सकता। अगर पूरी दुनिया मेरी मुखालिफ होती है, अगर पूरी दुनिया मुझे छोड़ देती है, मैं तमाम खानदान को छोड़ सकता, मैं माशरे को छोड़ सकता हूँ, मैं अपने घर वालों को छोड़ सकता हूँ, मैं अपने चचा ताया को छोड़ सकता हूँ, अपनी तमाम बिरादरी की बातों को छोड़कर मैं अल्लाह की दरगाह की तरफ मुतवज्जह होता हूँ। ये है इस्लाम की तालीमात। मैं तुम्हारे खुदाओं की बातों में नहीं आऊंगा, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। अगर खानदान मुखालिफ होता है, बिरादरी मुखालिफ होती है, अगर कारोबार मुखालिफ होता है, बीवी मुखालिफ होती है, बच्चे मुखालिफ होते हैं, ये तमाम मुखालिफ होने दो, ये तमाम टूटने दो, ये तमाम नाराज होने दो, मगर मैं इस्लाम को और अल्लाह को नाराज नहीं कर सकता। फिर फरमा रहे कि कुल इन्नी उमिरतु अन अकूना अव्वला मन अस्लम वला तकूनन्न मिनल मुशरिकीन कुल इन्नी अखाफु नासिर रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम मन युस्रफ अन्हु यौमइज़िन फ़क़द रहिमा व ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। व इन यमसस्कल्लाहु, तुम ये कहते हो और मुझे को धमकी देते हो कि देखो कि हम तुमसे नाराज हो जाएंगे, कि तुम हमारी बात को नहीं मानोगे, तो जाहिर सी बात है नाराज हो जाएंगे। अगर तुम हमारी बात को नहीं मानेंगे तो नाराज हो जाएंगे। तुम अगर हमारे दुकान पर ध्यान नहीं दोगे और तुम सिर्फ इस्लाम का नाम लोगे, सिर्फ तो मदारिस की तरफ तवज्जो दोगे, मसाजिद को तवज्जो दोगे, घर की तरफ तवज्जो नहीं देंगे, तो इसकी वजह से घर वाले नाराज होंगे। अल्लाह फरमा रहे कि तुम्हारा नाराज होना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि अल्लाह का नाराज होना बड़ी बात है। वही फरमा रहे वही यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहू, और अल्लाह अगर किसी को नुकसान पहुंचाना चाहे, अल्लाह अगर किसी को हलाक करना चाहे तो उसको कोई बचा नहीं सकता। वही यमसस्का बिखैरिन फहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, और अल्लाह ताला किसी को फायदा पहुंचाना चाहे और अल्लाह ताला किसी को खैर पहुंचाना चाहे तो अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। वहुवल काहिरु फौका इबादी वहुवल हकीमुल खबीर। बस अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ व जअल ज़ुलुमाति वन नूर, अल्लाह वो ज़ात अक़दस है जिसने ज़मीन और आसमान को पैदा किया और रोशनियों को और तारीकियों को और रोशनी को पैदा किया। फिर वो लोग जिन लोगों ने अपने रब का इनकार किया, वो लोग हद से आगे बढ़ने वाले हैं। वो लोग जो अपने रब का इनकार कर रहे हैं, वो लोग अपने आप पर जुल्म करने वाले। और अल्लाह वो ज़ात अक़दस है जिसने इंसान को मट्टी से पैदा किया, फिर उसके लिए एक वक्त बनाया। क्या का वक्त बनाया? मरने का वक्त बनाया। वअजलुम मुसम्मा इंदहु सुम्मा अंतुम तमतरून, और अल्लाह ताला ही के पास एक दूसरा वक्त इंसान के लिए मुतय्यन है। कौन सा है वो? कब्र से उठने का। और अल्लाह ताला के पास इंसान के उठने का एक दूसरा वक्त मुतय्यन है जिसमें तुम लोग शक कर रहे हो, वहुवा अल्लाहु फिस समावाति वल अर्द व फिल अर्द, और अल्लाह वो ज़ात अक़दस है जो ज़मीन और आसमान का बादशाह है। यअलमु सिर्रकुम व जहरकुम व यअलमु मा तक्सिबून, और अल्लाह जानता है तुम्हारी छुपी हुई बातों को और तुम्हारी अलानिया और खुली हुई बातों को। व यअलमु मा तक्सिबून, और जो कुछ तुम करतूत करते हो, जो कुछ काम करते हो, अल्लाह ताला इसको भी जानता है। वमा तअतीहिम मिन आयतिन मिन आयति रब्बिहिम इल्ला कानू अन्हा मुअरिज़ीन, और तुम्हारे पास कोई बात नहीं आती है, और तुम्हारे पास तुम्हारे रब की जानिब से कोई बात नहीं आती है मगर तुम इसको इग्नोर कर देते हो और तुम इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते हो। फक़द कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम, तहक़ीक़ के जिन लोगों ने हक बात को झुटलाया, उनके पास जब उनके पास आएंगी, जब वो अल्लाह के पास आएंगे, फसौफ़ यअतीहिम अंबाउ मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, अन करीब अल्लाह ताला उनके पास उन तमाम बातों को लेकर आएगा, उन तमाम खबरों को लेकर आएगा जिनका ये लोग इस्तेहज़ा कर रहे हैं। अलम यरो कमा अहलकना मिन क़ब्लिहिम, क्या उन लोगों ने नहीं देखा कि हमने इनसे पहले कितनी जमातों को हलाक व बर्बाद किया। अल्लाह फरमा रहे क्या वो लोग नहीं देखते इस बात को कि इससे पहले हमने कितनी जमातों को हलाक किया जिनको हमने जमीन के अंदर ताकत दी थी, और इतनी ताकत दी थी कि जिनकी ताकत हमने तुमको भी नहीं दी है। वरसलना समा अलैहिम मिदरारा, और हमने उनके लिए आसमान से क्या नाजिल किया था? पानी को नाजिल किया था। वजअलना अनहार, और हमने उनके लिए नहरें बनाई थी।
हमने उनके लिए नहरें बनाई थी, तजरी मिन तहतिहिम अनहार, जिसके नीचे तहतिहिम फअहलकनाहुम, जिसके नीचे से नहरें जाती थी। तो मिसाल के तौर पर ऊपर घर होते थे, नीचे से नहरें, फअहलकनाहुम बिजुनूबिहिम, फिर अल्लाह ने उनको उनके गुनाहों की वजह से हलाक किया। वअनशअना मिन बादिहिम क़रनन आखरीन, फिर अल्लाह ताला ने उनके बाद दूसरी जमातों को पैदा फरमाया है। वलौ नज़्ज़लना अलैका किताबन फ़ी क़िरतासिन फ़लमसूहु, और अगर हम इनके ऊपर कुफ़ार मक्का पर किताब को नाजिल कर दे, कहने कागज की शक्ल में, जैसे कागज है, कागज की शक्ल में नाजिल कर दे, फलमसूहु बिअयदीहिम, बस ये लोग इस कागज को अपने हाथ से छुएंगे। लक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू, छूने के बाद ये लोग कहेंगे ये क्या है, जादू है, ये क्या है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाउज़ुबिल्लाह क्या कर दिया हमारे ऊपर, जादू। वक़ालू लौला उनज़िला अलैहि मलक, और ये लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर फरिश्ता क्यों नाजिल नहीं होता, हमारे ऊपर फरिश्ता क्यों नाजिल नहीं होता। आज का हमारा अलमिया यही है। कुफार मक्का यही कहते थे कि ये कैसे नाउज़ुबिल्लाह, ये कैसे पैगंबर हैं जो बाजारों में जाते हैं, ये कैसे पैगंबर है जो घर का काम खुद करते हैं, ये कैसे पैगंबर है जो बीवी की बात को तवज्जो से देकर सुनते हैं, ये कैसे पैगंबर है जो बीवी का अदब व एहतराम करते हैं, ये कैसे पैगंबर है जो मजलूमों की दाद रसी करते हैं, ये कैसे पैगंबर है जो गरीबों का साथ देते हैं, ये कैसे पैगंबर है जो गरीबों के साथ रहते हैं, जो मिस्किनों के साथ रहते हैं, जो बेवाओं बेकसों का साथ देते हैं। आज हमारा हाल यही है। आज हम है तो जो आदमी इस्लाम को भी टाइम देता हो, जो आदमी मदारिस को भी टाइम देता हो, मसाजिद को भी टाइम देता हो, अपने बीवी बच्चों का खर्चा भी संभालता हो, अपने बच्चों के लिए वक्त निकालता हो, अपनी बीवी के लिए वक्त निकालता हो, मदरसे में पढ़ाता हो, मस्जिद में पढ़ाता हो, हम लोग ऐसे आदमी को नेक नहीं समझते, हम ऐसे आदमी को अल्लाह वाला नहीं समझते। हाँ, जो लोग टोपी ड्रामा कर रहे हैं, जो लोग है तो बाबागिरी का ढोंग रचाते हैं, और जो लोग है तो इस्लाम के नाम पर है तो तसव्वुफ का गलत मजाक उड़ाते हैं, गलत तशरीह करते हैं, जो लोग बाजारों में नहीं घूमते, और जो लोग है तो मस्जिद में इमामत नहीं करते, जो लोग है तो उम्मत के दुख दर्द में काम नहीं आते, जो लोग उम्मत के जनाजों में नहीं आते, जो लोग उम्मत के मसाइल में नहीं आते, बल्कि दस्ती ओढ़कर घरों में बैठते हैं, ऐसे लोगों को लोग नेक समझ रहे हैं, ऐसे लोगों को नेक समझ रहे हैं। जो लोग हमेशा घर में औरतों के सरका बन के रहते हैं, घर में तस्वीर डालकर रह रहे हैं, ऐसे लोगों को लोग समझते हैं और उनको हदिया, तोहफा, उनके लिए खाने की चीजें और उनके लिए पैगामात, उनके लिए खुशखबरियां, तमाम की तमाम चीजें दुनिया भर की उनके कदमों में लाकर रखते हैं। और जो लोग अपनी बीवी बच्चों का ख्याल करते हैं, मदारिस में जाते हैं, मसाजिद में जाते हैं, उम्मत की खिदमत करते हैं, उम्मत के वास्ते बातें सुनते हैं, ऐसे लोगों को लोग नेक नहीं समझ रहे। क्यों? ये लोग नेक है, अब भी जो बाजार में दिख रहे थे, अब भी ये काम कर रहे थे, अब भी फला दुकान पे काम कर रहे थे, अब भी है तो वहां पे टोकरे उठा रहे थे, अब भी है तो मिस्त्री काम कर रहे थे, ऐसे लोगों को लोग नेक नहीं समझते। और जो लोग टोपी ड्रामे करते हैं, जो लोग है तो तसव्वुफ का गलत मजाक उड़ाते हैं और दस्ती डाल के रहते हैं हमेशा आपा की तरह, और हमेशा सफेद दस्ती में रहते हैं, ना उनके हाथों को कुछ हुआ, ना अल्लाह के दीन के वास्ते कभी हाथ को कुर्बान किया, ना मक को कुर्बान किया, बल्कि हमेशा खुड़ाने के सरका, मुर्गियों के सरका घरों के अंदर बन रहते। जितने भी आमिल हजरात है, आप देखो उन लोगों को क्या हाल है, हमेशा दस्ती पल्लों की सरका रहेंगे या घरों के अंदर रहेंगे, बस वही सब चलते रहेंगे। ये हमारा अलमिया है, जिसका कुफार मक्का ने जब इतराज किया था, आज भी हमारा पूरा का पूरा जहन ये बन चुका है। ऐसा नहीं है मेरे भाइयों, जो बंदा हमारी खिदमत कर रहा है, हमारे दुख में, हमारे दर्द में, हमारी नमाजों में, हमारे जनाजों में और हमारे हॉस्पिटल में, हमारे दवाखानों के अंदर बच्चों के लिए आ रहा है, अजान देने के लिए आ रहा है, ये वली है, ये लोग जुनैद बगदादी है, ये लोग करामत वाले हैं, ये लोग बाइज्जत है, ऐसे लोगों की कदर करना चाहिए। मगर हम आमतौर से हमारे माशरे के अंदर ऐसे लोगों की कदर नहीं होती। आ गए हफ्स साहब, हाँ चलो, भाई जुमा करने के लिए बुला दिए, हाँ चलो चलो, बच्चों को अजान देने के लिए बुला दिए, हाँ चलो, जनाजे में नमाज होगी, हाँ चलो, कोई इकराम नहीं, कोई इज्जत नहीं, हाँ इमाम साहब आओ, खत्म, हाँ फला कर दो, आ जाओ। और जितनी बाबागिरी है उनके तमाम के पास दो दानों जाएंगे, अदब से जाएंगे, एहतराम से जाएंगे। अलगर्ज मेरे दोस्तों, ये बहुत बड़ा हमारा अलमिया है। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि प्यारे मोहम्मद, और अगर अल्लाह इनके कहने के मुताबिक फरिश्ते को नाजिल करता तो अल्लाह ने नाजिल किया नहीं। ये बात समझाना चाह रहे हैं हम आपको। अल्लाह ऐसे नहीं है। हालांकि वो लोग गोया के तंज के तौर पर बोलते थे, मोहम्मद अगर तू सच्चा नबी है तो फरिश्ता क्यों नहीं आ रहा? फिर प्यारे मोहम्मद आप सच्चे नबी है तो आसमान से किताब उतारो। ये चैलेंज है, कोई बड़ी बात, मामूली बात नहीं है। इसके बावजूद अल्लाह उनकी बातों में नहीं आए। अच्छा, मुझे चैलेंज कर रहे हैं, मुझे ये कर रहे, तुम मुझे गैरत दिखा रहे। जैसे आमतौर से हमारे पास, अरे तू कौन है, ये खानदान का, ये है, फला है, तू तेरी क्या औकात है, ऐसा बोलते इंसान जज्बात में आ जाता। आता कि नहीं आता? पर अल्लाह ऐसे नहीं है।
اللہ تمام باتوں کو سننے کے باوجود، اتنی زیادہ گستاخی، اتنا زیادہ برا لہجہ استعمال کرنے کے باوجود اللہ کریم نے ان کے لیے ہدایت کے راستوں کو رکھا تھا اور پیارے محمد کو ان کی زندگی میں رکھا تھا. یہ ہے چیز. اور اگر ہم ان کے سامنے فرشتے کو نازل کرتے نا، تو فرشتے کو نازل کرنے کے بعد پھر ہم ان کو وقت نہیں دیتے سدھرنے کا. جب فرشتہ نازل ہوں گا تو پھر عذاب نازل ہوں گا. جب فرشتہ نازل ہوں گا اور ایمان نہیں لائیں گے تو کیا ہوں گا؟ پھر قوم مطالبہ کرے اور مطالبے کے بعد ایمان نہ لائے تو اللہ کا کیا ہوتا؟ عذاب. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. اور اگر ہم ان کے سامنے فرشتے کو نازل کرتے تو اس فرشتے کو بھی ہم آدمی بنا کے نازل کرتے. اس فرشتے کو کیا کرتے؟ آدمی بنا کر نازل کرتے. جس طرح یہ لوگ آپ پر شک کر رہے ہیں، اسی طرح وہ فرشتے پر بھی کیا کرتے تھے یہ لوگ؟ شک کرتے. اس لیے فرشتہ بھی آدمی کی شکل میں آتا ہے. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، ان کے سامنے ان کی شکل میں آتے تھے. حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت خود ہے، فرماتی ہے کہ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کر رہے تھے اور جبرائیل علیہ السلام اور دحیہ کلبی کی شکل میں آئے اور آپ ان سے بات کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی فرمایا کہ اے سلمہ تم جانتی ہو یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ فلاں فلاں صحابی ہوں گے. فرمایا نہیں، بلکہ یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل ہے جو میرے پاس آئے تھے فلاں صحابی کی شکل میں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کبھی کبھی ہے تو صحابہ کرام کی شکل میں آتے ہیں، دحیہ کلبی ہے اور بھی دیگر صحابہ ہے ان کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اور تحقیق کہ جو لوگ ہمارے پیغمبر کا اور جن لوگوں نے آپ سے پہلے پیارے محمد، آپ سے پہلے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور اسی طرح ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کا جن لوگوں نے استہزاء کیا ہے، جس بات کو لے کر ان لوگوں نے استہزاء کیا ہے، بس ان لوگوں کو وہ چیز آ پہنچی جس کے ذریعے سے وہ لوگ استہزاء کر رہے تھے، جس کا وہ لوگ مذاق ارے کچھ نہیں ہے جہنم، جو مذاق ہے، یہ مسلمانوں کو ڈرا کے رکھا ہے جہنم ہے جہنم ہے جہنم ہے، یہ مسلمانوں کو ڈرا کے رکھے ہوا ہے ان کے اسلام میں کہ خبر میں عذاب ہوتا، مرنے کے بعد اٹھائے جاتے ہیں. ارے ایک ہی بار زندگی لائف ہے، اس کو عیش کر کے زندگی گزار دو. یہ اسلام میں ڈرا ڈرا کے رکھا ہوا ہے. نہیں میرے بھائیوں، یہ بات یقینی ہے، 100% یقینی ہے. اگر کسی کا انتقال ہوا جا کر پوچھو، آپ چلے جائیں گے ابھی قبرستان، ابھی مت جاؤ. دیکھیے اب جا کے دیکھیں گے. ایک آدمی نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا ہڈی لے کر آیا، ہڈی لے کر آیا. تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ قبر کے اندر عذاب دیتا ہے، بتاؤ ہڈی میں کہاں عذاب ہے، کہاں اس کے اندر آگ ہے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کرنٹ کو ہاتھ لگا کے بتاؤ پھر کہاں دکھتا ہے اس کے اندر آگ؟ کرنٹ کا جو وائر ہے تو اس کے اندر دکھتی ہے آنچ دکھتی ہے اس کے اندر؟ نہیں. ہاتھ لگا کے بتاؤ تو معلوم ہو جائیں گے. لگاؤ نہ کوئی تو پھر اوپر آ جائے گا پورا کیس. اور اللہ ذات اقدس جو زمین آسمان کا بادشاہ ہے. کہہ دیجیے کس کے لیے زمین آسمان کی بادشاہت؟ کس کے لیے؟ کس کے لیے ہے؟ قل للہ. تو اللہ فرما رہے نبی تم خود کہہ دو کس کے لیے؟ اللہ. کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر ہے تو رحمت کو لکھ دیا ہے. یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو جمع کرے گا. الذین خسروا، اور وہ لوگ جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ایمان نہیں لا کر، فہم لا یؤمنون، جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں وہ لوگ اپنے اوپر جانوں پر ظلم کرتے ہیں. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اللہ تعالیٰ تو جو کچھ دن میں ٹھہرتا ہے یا رات میں ٹھہرتا ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ تعالیٰ سننے جاننے والا. کہہ دیجئے کیا اللہ کے علاوہ کہ میں کسی کی مدد کروں یا کیا میں اللہ کے علاوہ کسی کو خدا مانوں؟ اتخذو، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی کو معبود بناؤں؟ ولیکن فاطر السماوات والارض، جو اللہ میرا زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا اور کارساز ہے. ویطعم، اور اللہ ذات ہے ویسے مجھے کیا کرتا ہے؟ کھانا کھلاتا ہے. ولا یطعم، اور اللہ کو کھلایا نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ مجھ کو کھانا کھلاتا ہے، اللہ کو کھلایا نہیں. قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکون من المسلمین، کہہ دو کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں صرف اسلام کا تابعدار ہو کر رہوں اور میں کافری کی بات مت مانوں. انی اخاف ان اعصی ربی عذاب یوم عظیم، بلا شبہ میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ میں ایسے رب کی نافرمانی کروں جو دردناک عذاب دینے والا ہے. من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، اور جس شخص کو اس دن عذاب سے پھیر دیا گیا تو یقیناً اس کے پر رحم کر دیا گیا. وذالک الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تعالیٰ جس کو نقصان پہنچانا چاہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا مگر اللہ کے سوا، اور اللہ تعالیٰ کسی کو خیر پہنچانا چاہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر قادر ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور اللہ تعالیٰ اپنے باتوں کو جاننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جاننے والا ہے اور اپنے بندوں کے ساتھ حکمت سے کام کرنے والا ہے.
اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو قرآن مقدس سمجھنے سمجھانے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.